નમસ્કાર, હું પ્રવીણ. આજે રિયલ ડિબેટમાં વાત કરીશું આંતરમાળખાકીય સવલતો ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિશે. જે પ્રોજેક્ટ ચાલી રહ્યા છે, વિકાસ જરૂરી છે. દરેક બાબતમાં આપણે વાત કરીએ કે જમીની સ્તરથી પ્રોજેક્ટ્સ જે ભવિષ્યમાં આધારભૂત મજબૂત એક સ્ટેજ બનશે ભારતીય ઇકોનોમીનું કે પછી જે તે ક્ષેત્રનું. પણ જે આંકડાઓ કે સ્થિતિ સામે આવે છે કે રિપોર્ટ સામે આવે છે કે વિકાસના અથવા તો આંતરમાળખાકીય સુવિધાના જે પ્રોજેક્ટ્સ જે ચાલી રહ્યા છે તેમાં વિલંબ છે અથવા તો ખર્ચ વધી રહ્યો છે. તેના કારણો પણ ઘણા બધા છે. વિલંબમાં પડવાના કારણે પણ ખર્ચ વધે, અન્ય કારણો પણ હોય છે અને સાથે જ વધુ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ થઈ રહ્યું છે. તો આ પ્રક્રિયામાં જે પ્રાયોરિટી છે એ પ્રમાણે ખર્ચ થઈ રહ્યો છે, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઊભું થઈ રહ્યું છે, પણ તેની અસર અર્થવ્યવસ્થા પર કેવી પડશે અથવા તો થઈ શકે તે આજનો મુદ્દો છે. કેમ કે આપણે જ્યારે પણ મિનિસ્ટ્રી ઓફ સ્ટેટિસ્ટિક્સ એન્ડ પ્રોગ્રામ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશનની વાત કરીએ, એક રિપોર્ટ છે જેના આધારે તમને નક્કી થાય અને આંકડાઓ પણ આવે કે 647 જેટલા પ્રોજેક્ટ છે જે વિલંબથી ચાલી રહ્યા છે. કોઈ 1 થી 12 મહિના તો કોઈ 61 મહિનાથી વધુ વિલંબ થવાના કારણે પ્રોજેક્ટ ખર્ચ પણ વધે. જે પડતર કિંમત હોય છે પ્રોજેક્ટની તેનો ખર્ચ પણ વધે. અને જે આ ટોટલ પ્રોજેક્ટ જે છે 300 થી વધુ 393 પ્રોજેક્ટ જે નિયત નિર્ધારિત ખર્ચનો અંદાજ હતો તેનાથી 4.65 લાખ કરોડ ખર્ચ વધુ થવાનો અંદાજ છે. કારણ કોઈ પણ હોય પરંતુ ખર્ચ વધી રહ્યો છે. આ ખર્ચ ક્યાંથી આવશે અથવા તો આ વધતો ખર્ચ ઇકોનોમીને કેટલો ફાયદો અથવા તો નુકસાન કરશે એ પણ એક મુદ્દો છે. પણ તમામ પ્રોજેક્ટ્સ વિકાસ માટે જરૂરી છે, પણ તેની ગતિશીલતા પણ એટલી જરૂરી છે અથવા તો તેમાં ખૂટતી કડીઓ પણ જોડવી જરૂરી છે, જેથી જે $5 ટ્રિલિયન આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ, આમ તો આંતરમાળખાકીય સુવિધાઓ માટે જે આપણે ઇન્વેસ્ટ કર્યું છે, જો આપણે એ લક્ષ્યાંક હાંસલ કરવો હોય $5 ટ્રિલિયન તો એમના માટે પણ ઇન્વેસ્ટ કરવું પડશે. એ કેટલું કરવું પડશે એ પણ એક મહત્વનો મુદ્દો છે. આંતરમાળખાકીય સુવિધાઓ, તેમના પર થતો જંગી ખર્ચ, આ પ્રોજેક્ટ્સમાં થતો વિલંબ અને તેની અર્થવ્યવસ્થા પર અસર. આ જ મુદ્દે ચર્ચામાં 3 ખાસ મહેમાન રિયલ ડિબેટમાં આજે આપણી સાથે જોડાશે. प्रोफेसर सेबेस्टियन मोरिस अपनी साथ जोड़ाशे अर्थशास्त्री तरीके. सेबेस्टियन सर, आपका स्वागत है. अश्वनी कुमार, सेप्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हमारे साथ जुड़ेंगे. अश्वनी जी, आपका भी स्वागत है. डॉक्टर जयनारायण भाई व्यास पण अपनी साथ जोड़ाशे. व्यास साहेब, आपનું પણ સ્વાગત છે. વ્યાસ સાહેબ, આપથી જ શરૂઆત કરીએ. આંતરમાળખાકીય સુવિધાઓની વાત છે, તેના પ્રોજેક્ટ્સની વાત થઈ રહી છે, પણ જો દેશના વિકાસની વાત કરીએ તો તેમના મુખ્ય ઘટકોમાં કઈ કઈ બાબતો મહત્વની છે, શું સામેલ કરી શકાય, અને 2025 સુધીમાં આ જે ઘટકો છે તેનું આંતરમાળખાકીય સવલતો વિકસાવી હોય તો ભારતે ઘર આંગણેથી જ તેમજ વિદેશમાંથી કેટલું રોકાણ મેળવવું પડે, જે આપણે લક્ષ્ય સાથે આપણે જઈ રહ્યા છીએ 2025 ના? ખૂબ સરસ પ્રશ્ન છે તમારો. એને હું સ્થાનિક પરિસ્થિતિના પરિપ્રેક્ષ્યમાં સમજાવીશ તો આપણા દર્શક મિત્રોને કદાચ સરળતા પડશે. 1960માં આપણે અલગ રાજ્ય બન્યા. મુંબઈ મહારાષ્ટ્રમાં ગયું. એ વખતે ઔદ્યોગિક વિકસિત રાજ્યોમાં આપણે 8મા નંબર. અને એ બાદ જે પ્રક્રિયા શરૂ થઈ એમાં 2 માણસોને મહત્વના ગણું છું. એક જીઆઈડીસી ના પહેલા ચેરમેન મનુભાઈ શાહ. એમનું વિઝન હતું કે પ્રોજેક્ટને શરૂ થવામાં મોડું કેમ થાય છે. એને જમીન એને કરાવવી પડે, પાણી લાવવું પડે, એફ્લુએન્ટ ડિસ્પોઝલની વ્યવસ્થા કરવી પડે, બેંક જોઈએ, પોસ્ટ ઓફિસ જોઈએ, ફાયર સ્ટેશન જોઈએ, કનેક્ટિવિટી જોઈએ, ટેલિફોન એક્સચેન્જ જોઈએ. તો એમણે જીઆઈડીસી એસ્ટેટનો આખો જે ખ્યાલ છે એ એમણે મૂર્તિમંત કર્યો. અને વાપીથી અમદાવાદની વચ્ચે, ખાસ કરીને જેને અમદાવાદ મુંબઈ બ્રોડગેજ લાઇન અને હાઈવે વત્તા ગુજરાતની બધી જ 12માસી નદીઓના કારણે પાણી, એની ઉપલબ્ધિ એની શરૂઆત તબક્કે એની જાહેરાત અમે જે કરતા હતા એવા જીઆઈડીસી માટે લખતા હતા કે જીઆઈડીસી where you get everything from the world go for infrastructure. જીઆઈડીસી માં અમે તમને પ્લોટ કે શેડ આપીએ છીએ, ત્યાર પછીની કોઈ ચિંતા તમારે કરવાની હોતી નથી. અમે તેની સાથે પાણી પણ આપીએ છીએ,
અમે તેની સાથે વીજળી પણ આપીએ છીએ. અમે તેની એટલે ફ્રોમ એક થી બીજા ઓથોરિટી પાસે તમારે જવાનું હોતું નથી. આ આંતરમાળખાકીય સવલત કહેવાય. આંતરમાળખાકીય સવલત એટલે તમારું માળખું છે, દેશનું એક બાઉન્ડ્રી છે આપણી, એ બાઉન્ડ્રીને ડેવલપ કરવા માટે તમારે જે ગ્રીડ તૈયાર કરવી પડે સવલતોની, એ વિધિન દેટ છે, એટલે આંતરમાળખાકીય અથવા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કહેવાય. અને રાઇટલી સો આ વખતે જે ઇકોનોમિક સર્વે આવ્યો એને બહુ જ સરસ વાત કરી છે કે તમારે જો $5 ટ્રિલિયન ની અર્થવ્યવસ્થાએ પહોંચવું હશે તો એમાં તમારી પાસે વિશ્વ કક્ષાની આંતરમાળખાકીય સવલતો જોઈશે. અને પછી એ લોકોએ અમુક વસ્તુઓ આઈડેન્ટિફાઈ કરી. એમાં નેશનલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પાઇપલાઇન, એટલે એમાં જે જુદા જુદા જાતના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રોજેક્ટ આવતા હોય એમાંથી પણ 70% પ્રોજેક્ટ તો 4 જ ગણી શકાય. એક એનર્જી એટલે વીજળી, રોડ્સ, અર્બન ડેવલપમેન્ટ એન્ડ અર્બન પ્લાનિંગ, રેલવેઝ અને રૂરલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, ઇરિગેશન. આટલી વસ્તુ તો મિનિમમ તમારી પાસે વર્લ્ડ ક્લાસ હોવી જોઈએ. બીજી કનેક્ટિવિટી એ બધાને મેનેજ કરી શકાય, પણ આ વસ્તુને સમય લાગે. ધેર ઇઝ અ લીડ ટાઈમ ફ્રોમ ધ ટાઈમ યુ પ્લાન. રાતોરાત નહેર ના બની જાય, રાતોરાત ડેમ ના બની જાય, રાતોરાત વીજળી ઘર ના ઉભું થઈ જાય, રાતોરાત રેલવેના પાટા ન નખાઈ જાય. ધીઝ આર પ્રોજેક્ટ્સ હેવિંગ એ લીડ ટાઈમ. હવે એમાં જે ચિંતાજનક બાબત આજે ચર્ચા કરવાની છે આપણે એ છે કે એમાં વિલંબ થઈ રહ્યો છે. ને વિલંબ કેટલો? સરેરાશ આપે આંકડો બહુ સરસ રીતે કહ્યો, પણ એ જે વિલંબ છે એ વિલંબની તમે સરેરાશ જોવો છો એના કરતા જો એને થોડું જુદું કરીને આપણે જોઈએ ને તો જબરજસ્ત છે. એટલે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સેક્ટરમાં 150 કરોડ કે તેથી વધુના 393 પ્રોજેક્ટનો ખર્ચ વધી ગયો છે. 4.65 લાખ કરોડથી વધારે વધી ગયો છે. આ એક વસ્તુ. એટલે we already have a problem of managing fixed deficit. There you here need additionally funds to be raised. અને આ તો માત્ર આટલા પ્રોજેક્ટ પૂરતા છે. આગળ તો પછી જે થવાનું છે તે થશે. એટલે સરેરાશ 41.64 મહિના પણ જે છેલ્લા પ્રોજેક્ટ છે 273 પ્રોજેક્ટમાં 25 થી 60 મહિનાનો વિલંબ. હવે આ વિલંબના શું પરિણામ આવે? વિલંબનું એ પરિણામ આવે, તમે આજે નાનકડું આપણું ઘર પણ બાંધતા હોઈએ અને અંદાજ વર્ષ 1.5 વર્ષમાં પૂરું કરવું હોય અને કોઈ પણ કારણસર એમાં વિલંબ થાય તો શું પરિણામ આવે? તો પહેલું થાય કે તમને કિંમત વધી જાય. જે આંકડા આપ્યા છે એમાં પણ 4 લાખ કરોડ કરતા વધારે કિંમતો માત્ર આટલા જ પ્રોજેક્ટ છે જે લીધા છે એમાં વધી ગઈ છે. એટલે કિંમત વધે. કિંમત વધે એટલે તમારે વધારાની જોગવાઈ કરવી પડે. બીજું, the opportunity is lost. તમે 5 વર્ષ કે 6 વર્ષ એ ઉપયોગ ન કરી શકો એટલે તમને જે મળવું જોઈએ આવક એમાંથી તે આવક નહીં મળે. The opportunity that which you could have got and which could have been encased into the economic gains or financial gains will not get. This is the second thing. Third is you will have to pay inconvenience cost. Suppose that you are creating a highway or a road which is linking to important centers and intervening other centers where the fallout benefits of this road project will fall. એ ન મળે. એટલે 3 મુદ્દે આ નુકસાન પ્રોજેક્ટ ડિલે થવાથી થાય. અને ચોથા મુદ્દે સરકાર ઉપર જેમ જેમ પ્રોજેક્ટ ડિલે થતો જાય તેમ તેમ વધારાના નાણાં ઉભા કરવાની જવાબદારી આવતી જાય. એટલે અત્યારે તમે 4 લાખ કરોડની વાત કરો છો પણ ઇટ વિલ નોટ ટેક ટાઈમ, કારણ કે ફુગાવાનું પણ અંદર આપણે ઉમેરો કરવાનો. કશું ના કરો તો પણ આપણે 7% તો કિંમત વધી જ જાય. એટલે ફુગાવાજન્ય પરિબળોના કારણે, અન્ય પરિબળોના કારણે પ્રોજેક્ટની કિંમત વધતી જાય. એના માટે વધારાના પૈસાની જોગવાઈ કરવી પડે. હવે જે દેશની અર્થવ્યવસ્થામાં
નાણામંત્રીને ફિસ્કલ ડેફિસિટને કાબુમાં રાખતા રાખતા તરફડિયા મારવા પડે. બીજી બાજુ તમારી કરંટ અકાઉન્ટ ડેફિસિટ એમાં પ્રોબ્લેમ હોય તો આ નાણાં આવશે ક્યાંથી? એટલે જે ઇકોનોમિક સર્વેમાં તો બહુ સરસ રીતે કહ્યું છે કે તમારે પીપીપી કરવું જોઈએ, પણ પીપીપી કરવા માટે પણ તમારી પાસે તમારા શેર અથવા તો તમારા પોતાના પૈસા જોઈએ. એનું હાઉ હેવ યુ મોનેટાઇઝ યોર પ્રોજેક્ટ, એનું કોઈ મોનિટરિંગ ફાઇનાન્શિયલ એક ટાઈમની દ્રષ્ટિએ એને મોનિટર કરવો જોઈએ જેથી સમયમાં પૂરો થાય. અને બીજો નાણાકીય તમારા જે એસ્ટિમેટ્સ હતા એની દ્રષ્ટિએ એને મોનિટર કરવો જોઈએ જેથી કોસ્ટ ઓવરરન્સ 2-5% થાય ત્યાં સુધી મેનેજેબલ છે, બાકી એથી વધારે થાય નહીં. આ બંને દ્રષ્ટિએ જે આપણા દેશના મોટા પ્રોજેક્ટની વાતો કરવામાં આવી છે તે બંને ચિંતાજનક દ્રષ્ટિએ આપણે પાછા પડી રહ્યા છે. 4 વર્ષ કરતા વધારેનો સરેરાશ વિલંબ થઈ રહ્યો છે અને હજુ સુધીમાં ખાલી 4 લાખ કરોડથી વધારે એની કિંમત વધી ગઈ છે. એટલે આની વાયબિલિટી જેને કહેવાય, અલ્ટિમેટલી તો તમે જે પૈસા નાખો છો તે પૈસાનો એક પેબેક પીરિયડ હોય છે, એની એક વાયબિલિટી હોય છે. તમે જે પૈસા નાખો એના બદલામાં તમને જે ફાયદા થવાના એનું એક ફાઇનાન્શિયલ મોડેલ હોય છે. તો આ બધી જ વસ્તુ એક નાની આપણે કરિયાણાની હાટડી નાખીએ ને તો આટલો વકરો થાય તો આપણને પોષણ થાય, આટલો ના થાય તો ના થાય. એ પેલું તો હજુ આ મોટી હાટડીઓ પૂરું થવાનું નામ જ નથી દેતી. અને એમાં કારણો શું છે? ક્યાંય જંગલ આવતું હોય, કોઈ જગ્યાએ એવડી કઈ નેમ નડતી હોય, કોઈ જગ્યાએ જમીન લેન્ડ એક્વિઝિશનના પ્રશ્નો નડતા હોય. તો વચ્ચે તો મને આઈ રિમેમ્બર ડિસ્ટિંક્ટલી હેવિંગ હર્ડ ગડકરીજી કે અમે એવું બધું ગોઠવ્યું છે કે હવે આ બધા પ્રશ્નો આવે જ નહીં રસ્તામાં. આ બધા જ મંત્રાલય ભારત સરકારના છે. વાય ડોન્ટ યુ હેવ અ સેન્ટ્રલ મોનિટરિંગ કમિટી? જે ગડકરીજી કહેતા હતા પણ એ આમાં આ પ્રોજેક્ટ માટે નહીં હોય એવું તો બને જ નહીં. તો તમે કેમ એ ઉપયોગ જો ગડકરીજીએ એમના ખાતાને લગતા રસ્તાઓના પ્રોજેક્ટ માટે કર્યો? આમાં તો રસ્તાઓના પ્રોજેક્ટ પીછડી રહ્યા છે. તો તમે ક્યાં કરો છો, શું કરો છો ને કઈ રીતે કોઓર્ડિનેટ કરો છો? રાજ્ય સરકાર એમ કે બધું બરાબર છે પણ જે ગામડામાં જવાનો રસ્તો છે ને એમાં દબાણો છે, તો રાજ્ય સરકાર નકામી છે એમ માની લેવું જોઈએ. તે જ રીતે જંગલ ખાતું એ કઈ દેશથી તો આવ્યું છે, આ દેશનો જ ભાગ છે, દેશના વિકાસ માટે એ કામ કરવા બંધાયેલું છે. તો એની વ્યાજબી માંગણીઓ હોઈ શકે પણ સાથે બેસીને એનો ઉકેલ કેમ ના આણાય? એ ઉકેલ આણવો જોઈએ. જમીન એક્વિઝિશન ચાલ્યા જ કરે પ્રોજેક્ટ તમારે મૂકી દેવો. આપણો આઈડિયલ પ્રોજેક્ટ ડિલે થાય તો શું થાય? એનો દાખલો આપણો એક્સપ્રેસ હાઈવે છે. એ 77માં આઈ રિમેમ્બર મેં મને એક ભાષણમાં કહેલું કે અમદાવાદ બરોડા એક્સપ્રેસ હાઈવે will open up new doors of development. એ પછી એ જે કન્સ્ટ્રક્શન કંપનીને મળ્યો તેમાં કઈ 3-4 કરોડ રૂપિયાની કિંમત વધારે હતી અને એના માટે ડિસ્પ્યુટ થઈ અને બંધ થયો પ્રોજેક્ટ બંધ થયો, કોર્ટમાં ગયો. કોર્ટમાં વર્ષો સુધી એ ચાલ્યા કર્યું અને સરવાળે that project was to be redone અને એ ફરીથી થયો ત્યારે જે ઓરિજિનલ કોસ્ટ હતી ધારો કે 100 રૂપિયા હતી તો 800 રૂપિયામાં થયો, 8 ગણી થઈ ગઈ કોસ્ટ. તો આ કોના પૈસા? અને અમદાવાદ વડોદરા વચ્ચેના વાહન વ્યવહાર માટે ઉપયોગમાં લેવા ડીઝલ બચ્યું હોત, ટાયરનો ઘસારો બચ્યો હોત, વધારે મુસાફરોએ મુસાફરી કરી હોત, મુસાફરી કમ્ફર્ટેબલ રહી હોત, ઓછા સમયમાં મુસાફરી કરી શકાય હોત, આ બધું કોને નુકસાન ગયું અને એની મોનેટરી કોસ્ટ શું? એટલે આપણે આ વસ્તુને સમજવી જોઈએ. બીજો આપણા ત્યાં મોટો એક્ઝામ્પલ સરદાર સરોવર નર્મદા પ્રોજેક્ટ છે. ઓલરાઈટ, ડેમ વોઝ ઇન ડિસ્પ્યુટ, પણ હેવ યુ ડેવલપ ધી ફીડર ચેનલ્સ રાઈટ અપ ટુ ધી ફિલ્ડ ટુ ડિલિવર ધ વોટર? તમે તમારો હેતુ શું છે આ બંધ બાંધવાનો? તળાવડું બનાવવાની બોટિંગ કરવા માટે બંધ નથી. 8 મિલિયન એકર ફીટ પાણી, 9 મિલિયન એકર ફીટ પાણી આપણને મળ્યું છે. એમાંથી 8 મિલિયન એકર ફીટ પાણી ખેતર સુધી પહોંચાડવાનું છે અને એ ખેતર
ખેતર સુધી પહોંચાડવા માટે મેઇન કેનાલ બાંધીને કે પછી બ્રાન્ચ કેનાલ બાંધીને કે પછી સબ બાંધીને તમે બેસી રહેશો તો નહીં પહોંચે. એના માટે તમારે પાણી પંચાયતો બનાવવાની છે, પાણીની કોઓપરેટિવ્સ બનાવવાની છે, એને તમારે પાણી આપવાનું છે. તમારે જાતે સીધું ફાર્મરને પાણી આપવાનું નથી. આ બધી જ બાબતો તમે એવોર્ડની ભૂસી નાખી. એટલે 2025 જયારે એવોર્ડ ચર્ચા માટે ખુલશે ત્યારે ગુજરાત ઇઝ ગોઈંગ ટુ ફેસ હેલ લોટ ઓફ એ ટાઈમ. પછી આપણે કોઈને ગાળો દઈને ગુજરાત વિરોધી છે અને પેલો દેશ વિરોધી છે કઈ જુદી વાત છે. ધ બેઝિક ફોલ્ટ લાઈઝ વિથ અસ. We have failed to manage the monitoring and one should take the responsibility squarely. હજુ પણ ગુજરાત સરકારે સમજવું જોઈએ. એને નર્મદા પ્લાનિંગ ગ્રુપ જેમ હતું એવું એક હવે 2025માં એવોર્ડ ખુલશે ત્યારે એવોર્ડના કયા પ્રોવિઝનનું આપણે વાયોલેશન કર્યું છે ટેબ્યુલેટ કરે, એના કારણો અને એ કારણો ચર્ચામાં આવે પહેલા આપણી પાસે એના જવાબ તૈયાર હોવા જોઈએ. સો ધીઝ આર ધ ઇશ્યુઝ વિચ વરી અસ. એટલે આ આંકડા છે એ આંકડા ખતરનાક છે. જે પ્રોજેક્ટો વિલંબમાં પડ્યા છે, 4-5 વર્ષ વિલંબમાં રહે, એને લગભગ એની રેલેવન્સ પણ ગુમાવી દીધી. ઘણી જગ્યાએ તો એ પ્રોજેક્ટ પછી નકામો થઈ જાય. ગાંધીનગરમાં તમને આદર્શ ઉદાહરણ આપું. સેક્ટર કયો છે તો ખબર બંધાયેલું સેક્ટર એક છે. સર્કિટ હાઉસ તરફ જવાના રસ્તે તમે વળો સર્કલ થી તો એક તળાવ લગભગ 22-25 કરોડના ખર્ચે કરેલું માત્ર મોર્નિંગ વોકર્સ વાપરતા હશે, બાકી પાણી નથી બનતું. એટલે યુટિલિટી વેલ્યુ, રેવન્યુ, અર્નિંગ મની આઉટ ઓફ ઇટ, અર્નિંગ ધ બેનિફિટ્સ સો પ્રોવાઇડેડ ફોર, એ ન થાય ત્યાં સુધી આવા બધા મેગા પ્રોજેક્ટ્સ તમને સરવાળે નુકસાની તરફ લઈ જાય. એટલે આ વાત ચિંતાજનક છે. અને આપણે મોરી સાહેબ જેવા ખૂબ વિદ્વાન આ ક્ષેત્રના કહી શકાય. અશ્વિની પણ અમારા મિત્ર છે. હી ઇઝ અ વેરી નોલેજેબલ પર્સન ઓન ધીસ એરિયા. એ બંને નિષ્ણાતોને આપણે આમંત્રે છે. એટલે આટલી પૂર્વ ભૂમિકા પછી મને લાગે છે કે હવે મારો વારો પૂરો થયો. આપણે આ બે નિષ્ણાતોનો જેટલું પણ ચયન કરી શકાય, એમનું દોહન કરી શકાય એટલું કરીને જાણીએ કે આ કઈ તરફ જઈ રહ્યા છે આપણે. ओके सर, धन्यवाद. सेबेस्टियन सर, जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन की बात की तो उसके बारे में हम बात करेंगे. ब्रेक के बाद उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन से सेक्टर इस फैसिलिटीज में आते हैं और हाल की स्थिति क्या है. अगर खर्च बढ़ रहा है तो फिर मतलब वो चिंता की बात है. ये रिपोर्ट्स, ये आंकड़े चिंता करने वाले हैं और चर्चा भी होनी चाहिए इसके ऊपर. एक ब्रेक માટે રોકાઈશું. બ્રેક બાદ અશ્વનીજી સાથે અને પ્રોફેસર સેબેસ્ટિયન મોરિસ સાથે ચર્ચા યથાવત. તંબેક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં જંગી ખર્ચ અને વિલંબમાં પડતા પ્રોજેક્ટ, અંદાજ કરતા વધતો ખર્ચ અર્થતંત્ર પર કેવી અને કેટલી અસર પહોંચાડે છે, ચર્ચા આગળ વધારીએ. બ્રેક પહેલા ડોક્ટર જયનાભાઈ વ્યાસ સાથે ચર્ચા થઈ. પ્રોફેસર સેબેસ્ટિયન મોરિસ આપણી સાથે છે. सेबेस्टियन सर, जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में बात की तो वो आखिर क्या है और हम किन किन सेक्टर्स को जोड़ के देख सकते हैं जो फैसिलिटीज इसमें इंक्लूड की गई है. जो रिपोर्ट आई है जिसके ऊपर व्यास सर ने चर्चा की वो तो चिंताजनक है ही, लेकिन इसका कारण क्या हो सकता है ऑनगोइंग प्रोसेस में. गडकरी जी का भी एग्जाम्पल दिया व्यास सर ने. तो क्या ये सब स्कीम डिले या चल रही है या फिर 4 लाख करोड़ से ज्यादा का मतलब खर्च बढ़ गया है, तो इन सब सेक्टर्स में आपके हिसाब से क्या असर पड़ेगा? देखो, बहुत सारे डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है, ठीक, और लेकिन आप अगर क्लोजली देखा गया तो सबसे ज्यादा ये जो पीपीपी और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है वो पावर, रोड्स, पोर्ट्स, ऑफ कोर्स एयरलाइंस, ऐसे सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन में हुआ है. रेलवेज पे नहीं हुआ है, अर्बन पे कुछ भी नहीं हुआ है. पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी कम है, प्राइवेट भी कम है. ये जो मल्टी मॉडल स्विचेस वगैरह बताते हैं उसमें भी कुछ नहीं हुआ है. तो ऐसे सेक्टोरल डिफरेंसेस बहुत है. okay? तो अभी का जो आप कह रहे हैं वो तो नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन की बात आप कर रहे हैं. उस पे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर लिस्टेड है. गवर्नमेंट ने 2 वॉल्यूम निकाला है और उन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए फॉर मॉनेटाइजेशन. ओके, अभी ये मॉनेटाइजेशन का बहुत ही हवा था. दे वर होपिंग दैट बहुत सारे एसेट्स हम बेच सकते हैं और पैसा बना सकते हैं. ओके, तो इसका कारण क्या था कि
पहले जब ये एसेट्स बनाए थे, कि जैसे रोड एसेट्स जो ईपीसी में थोड़ा बहुत अच्छी तरफ से बनाया था अंडर नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसका जो टोल्स था वो बहुत ही हाई रेट्स पे कंप्यूट करके रखा था, क्योंकि उस जमाने में जब वो उसका ऑथराइजेशन हुआ था और कंस्ट्रक्शन हुआ था, इंटरेस्ट रेट्स वर हाई. ओके, एंड देन व्हेन द इंटरेस्ट रेट्स फेल, इसको मोनेटाइज करने के लिए बहुत सारे लोग दौड़ के आ गए, बाहर से अंदर से भी, तो उसका वैल्यू अच्छा था, तो इसलिए गवर्नमेंट कुड सेल. तो ब्राउनफील्ड एसेट्स, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट जो आप कहते हैं, विच इज एसेंशियली सेलिंग प्री एग्जिस्टिंग रेवेन्यू अर्निंग एसेट्स, जैसे रोड्स है और ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स, बट विद टोलिंग जो गवर्नमेंट कर रहा था, उसको हम बेच सकते थे. तो बहुत सारे एसेट्स ऐसे बेच दिए और ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स पे इन इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश नंबर 1 पोजीशन पे आ गया. ओके, अभी ये कोविड क्राइसिस आने के बाद ओके इंटरेस्ट रेट्स और भी गिर गया और फिर एकदम अभी बढ़ गया है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. तो अभी वो जो मोनेटाइजेशन की बात हो रहा था, उतना मोनेटाइजेशन होगा नहीं, क्योंकि इतना हाई इंटरेस्ट रेट्स पे मेनी ऑफ दोज एसेट्स विल नॉट बी सेलेबल. ओके, बिकॉज प्राइवेट इंडस्ट्री को कैश फ्लो जो टोल से मिलेगा वो कम है कंपेयर टू दी, सो बिकॉज उनका फाइनेंसिंग कॉस्ट भी बढ़ेगा, दे विल बी एबल टू ऑफर वेरी लिटिल टू द गवर्नमेंट. तो उसको अभी भेजने की कोई चांस ही नहीं है. तो इसलिए एक फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट गवर्नमेंट के ऊपर भी आएगा ऑन particularly on infrastructure, particularly on roads, to build more roads based on monetization of prior roads. Okay, तो वो जो स्ट्रैटेजी गडकरी बता रहे थे कि हम मोनेटाइजेशन करते जाएंगे, उस पे एक बाधा आ गया है कि जैसे हाई इंटरेस्ट रेट होता है, यू कांट मोनेटाइज मेनी ऑफ दीज एसेट्स. ये एक बात है. दूसरी ये बात है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बैडली इफेक्ट हुआ है बिकॉज ऑफ द कोविड. ओके, तो अभी आप इस प्रोजेक्ट्स को अगर देखा गया एंड डू अ सेक्टोरल ब्रेकअप, उसमें एक सेक्टर में कोई डिले और कोई कॉस्ट ओवररन नहीं आया है, वो है रोड प्रोजेक्ट्स. बाकी सब में आ गया, जैसे पावर है, हेवी इंडस्ट्रीज है, स्टील है, टेलीकॉम है, रेलवेज है, इसमें बहुत सारे डिले और कॉस्ट ओवररन आया है. तो अभी आप सोचे कि क्यों ऐसा हुआ है, बिकॉज सब प्रोजेक्ट्स पे तो होना चाहिए कुछ तो, लेकिन अगर आप सोचेंगे तो इसका कारण बहुत ही सिंपल है. ये जो रोड प्रोजेक्ट्स आ गया है, वो सब उधर ट्रू रिफॉर्म हुआ था एक जमाने में, जब वाजपेयी का गवर्नमेंट था, उस टाइम पे हमने नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम निकाला था. ओके, तो उस प्रोग्राम में बहुत सारे इनोवेशंस प्लानिंग कमीशन की तरफ से हुआ था. ओके, अंडर मोंटेक सिंह अहलूवालिया एंड अनदर पर्सन कॉल्ड गजेंद्र हल्दिया, हु वाज द फादर ऑफ इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर. तो इन लोगों ने बहुत अच्छी तरफ से मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट फॉर रोड्स तैयार किए. अच्छी तरफ से उसका फाइनेंसिंग कैसे होगा, रिंग फेंस रोड फंड, नया लैंड एक्विजिशन, इंप्रूव्ड ईपीसी, इंप्रूव्ड बीओटी और इंप्रूव्ड एन्युइटी मॉडल, जो हम मतलब हमारे देश was the first country in the world to come out with. It was really a development of the mind and it happened in India in the planning commission. तो इसका बेनिफिट क्या हुआ कि हमारे नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम एक बार अनाउंस किया 2002-3 में, 2-3 में या शायद 3-4 में इतना इन्वेस्टमेंट, इतना स्पेंडिंग हुआ कि वो प्रीवियस 15 साल में नहीं हुआ था. तो ये एक बहुत बड़ी रिफॉर्म इन गवर्नमेंट, सक्सेसफुल रिफॉर्म हम कह सकते हैं. ओके, लेकिन अभी भी इसी के ऊपर गवर्नमेंट डिपेंडेंट है. दूसरी कोई जगह पे अच्छी तरफ से रिफॉर्म नहीं आया है. जो भी जैसे पावर में है, केस 1 उसका प्रॉब्लम आ गया, केस 2 उसका भी प्रॉब्लम आ गया. ओके, एयरपोर्ट्स उसका भी प्रॉब्लम आ गया. ओके, सिर्फ उसको अभी दे दिया है, अभी बहुत सारे एयरपोर्ट्स अभी बनने हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट्स होना है, ज्यादा नहीं हुआ है. तो बहुत सारे सेक्टर्स पे, अर्बन का तो कुछ स्टार्ट भी नहीं हुआ है, सुवरेज, सैनिटेशन, इस पे तो कोई नया मॉडल नहीं निकाला है, कोई पीपीपी वर्थवेल पीपीपी मॉडल नहीं है. सुवरेज, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब बहुत बड़े टिकट आइटम थे. एंड अर्बन ट्रांसपोर्ट पे कोई अच्छी मॉडल तो कुछ नहीं. एक बीआरटीएस, एक इलेक्ट्रिक बस,
उसका एमसीए निकाला है अभी अभी प्लानिंग कमीशन। द लास्ट एमसीए वाज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लानिंग कमीशन ओनली इन 2020। तो वो जो स्किल था प्लानिंग कमीशन में एमसीए करने की और जो जैसे एनएचडीपी जैसे पीपीपी करने का, वो अभी चला गया है। वो अभी कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है, एक आदमी दो आदमी चले जाने से वो खत्म हो गया। ये बहुत बेकार की बात है। तो अभी आप सोच लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में मिस्टर मोदी ने बहुत अच्छी तरफ से बताया कि स्वच्छ भारत होना चाहिए। ओके, क्योंकि नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट टू इंडिया देन अ क्लीन इंडिया। इंडिया हैज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मॉर्बिडिटी, सबसे ज्यादा इन्फेंट मोर्टालिटी, सबसे ज्यादा मैटरनल मोर्टालिटी, सबसे डर्टी एनवायरमेंट। इसका कारण क्या है? हमारे सिटीज और हमारे विलेजेस, अर्बन प्लेसेस एंड हैबिटेट्स एकदम डर्टी है। क्योंकि जो पब्लिक सर्विस होना है इसको क्लीन करने के, पानी जो देना है, पानी और सफाई दोनों साथ में जाते हैं, वो हमारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ठीक तरह से कर नहीं पाते। okay? तो इसके लिए इसको एक पीपीपी मॉडल पे रखना है। okay? लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने क्या बताया कि स्वच्छ भारत होगा, तो वो जो कहना है वो करेक्ट कर दिया कि वो उसका सीरियसनेस इंडिकेट किया, उसका पॉलिटिकल कमिटमेंट बताया, और वो सिग्नल करने के लिए वो झाड़ू लेके सब जगह सिग्नल कर दिया, वो भी अच्छा किया। लेकिन क्या हुआ, हमारे जो सेक्रेटरीज है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, वो उनका काम क्या है? उनका काम ये नहीं है कि वो भी झाड़ू लेके बताया कि हम भी कमिटेड हैं। उनका काम है टू क्रिएट सिस्टम, प्रोसेस, पॉलिसी, कोऑर्डिनेशन, पीपीपी फॉर्मेट, चेंज इन लॉ। हाँ, वो कुछ नहीं किया। वो बोल रहा ठीक है जाके टॉयलेट बना दो, ठीक है जाके पानी कर दो, लेकिन अगर इसको कोऑर्डिनेटेड काम से नहीं होगा तो ऐसे ही पड़ा रहेगा और फिर इन्वेस्टमेंट भी कम होते जाएगा। जैसे गवर्नमेंट वैसे एक पूरा अच्छा जो प्रोजेक्ट हो सकता था, जैसे वाजपेयी के टाइम पे हुआ, अभी नहीं हुआ। वैसे ही मिस्टर मोदी ने बोला कि हम स्मार्ट सिटीज बनाएंगे। इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब तो यही है कि हमारे सिटीज आर कंजेस्टेड, और सिटीज आर अनलिवेबल, तो उसका जो ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रेंट है उसको निकालना है। कुछ भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर रेलवे से उतरा तो आप बाहर आ गए, मट्टी टट्टी पे होगा। ओके, वहां आप ऐसे नहीं है कि जैसे बाहर है कि आप सूटकेस ड्रैग करके रेलवे प्लेटफॉर्म से बाहर आकर के बस पे या कार पे चले जा सकते हैं। ऐसे कुछ अरेंजमेंट नहीं है। एक टिकट से आप सब जगह तो नहीं जा सकते। तो ये जो होना चाहिए था, इसकी बात करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने स्मार्ट सिटी बोला, उन्होंने बोला कि ये तो उसको लिटरल इंटरप्रिटेशन हमारे डिपार्टमेंट ने करके कुछ वो उधर से हुआ नहीं है। ऐसे आप एक एक जो पॉलिटिकल कमिटमेंट जो गवर्नमेंट का था, एटलीस्ट एट द टॉप, उसको सब वेस्ट कर दिया। क्योंकि वो कैपेबिलिटी जो है गवर्नमेंट का, हमारे जो सेक्रेटरीज का, उनके पास नहीं है। ओके, और आप सोचेंगे कि वो वाजपेयी के टाइम पे कैसे हुआ? एक आदमी था वो कर सकता था। दूसरी, वहां के टेक्नोलॉजी जो करना है वो आईडीएफसी से आ गया। तो इन दोनों मिलके ये एनएचडीपी हो गया और प्राइम मिनिस्टर ग्राम सड़क योजना, दोनों से अच्छा कुछ काम हुआ है। तो अभी आप देख रहे हैं कि रोड प्रोजेक्ट्स डिले नहीं हुआ है, कॉस्ट ओवररन नहीं हुआ है, क्योंकि उसका जो फाउंडेशन था, डिजाइन फाउंडेशन, वो अच्छा है। बाकी कहां कोई जगह पे डिजाइन फाउंडेशन कुछ भी नहीं। ओके, तो इसलिए अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है कि जैसे कोविड का थोड़ा हिट हो गया तो प्रॉब्लम बहुत आ गया। तो अभी हमारा डिले 40% हो रहा है। बोलने से कंस्ट्रक्शन टाइम जो था अगर X है तो 40% ज्यादा हो गया है। कॉस्ट अभी कुछ 22% ज्यादा हो गया है। मेरे ख्याल से वो अंडर रिपोर्टेड है। आप ठीक करेक्ट कॉस्ट लेने से वो भी 40% हो गया। अभी हम प्री रिफॉर्म की बात करें, जब ये 80s पे हमारा कॉस्ट और टाइम ओवररन अबाउट 60% होता था। अभी हम उस तरफ उस लेवल पे पहुंचने वाले हैं। ओके, अभी इसका कारण क्या है? एक तो मैं बता दिया कि कोई दूसरी इस पे ज्यादा अच्छा डिजाइन नहीं है। okay? लेकिन दूसरे और भी कारण आ रहे हैं। एक ये है कि अ वेरी वेरी लेट बैक फियरफुल ब्यूरोक्रेसी में इतना फियर आ गया है कि कोई क्लियरेंस देने के लिए तैयार नहीं। तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस हैज बिकम अ बिग इश्यू इन गवर्नमेंट, बिकॉज कोई अगर एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिया तो उसको प्रॉब्लम हो सकता है। कोई कुछ क्लियरेंस दे दिया उसको, तो डे आफ्टर टुमारो आप उसको पकड़ के जेल पे डाल सकते हैं, उसके पीछे दौड़ सकते हैं। तो द रिस्क हैज बिकम वेरी हाई।
कोई कोऑर्डिनेट करने के लिए तैयार नहीं है गवर्नमेंट, क्योंकि सबका कॉन्फिडेंस जो था उतर गया है। कोई एक दो आदमी है ब्यूरोक्रेसी में जिसको कॉन्फिडेंस है, लेकिन एक दो आदमी कितना कर सकते? There has to be confidence down the level. लेकिन the bureaucracy is completely demoralized because of extreme centrality within the PM. और ये बोलने, I mean, this is a sure thing. I mean, I hear it from so many civil servants कि इतना सारे confidence उनका उतर गया है कि वो क्या करे, कैसे करे। अगर ये किया जाए तो शायद उनको प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं किया जाए तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसका एक प्रॉब्लम है। ये तीसरी तो मैं एडमिट कर रहा हूं, तो ग्लोबल है, फाइनेंसिंग कॉस्ट भी बढ़ गया है बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स गोइंग अप। बट लैंड एक्विजिशन भी एकदम बढ़ गया, उसका कॉस्ट और इफेक्टिवनेस। क्योंकि क्या हुआ था, तो जो कांग्रेस का जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था, ओके, वो ठीक नहीं रहा। जो जयराम रमेश एक्ट जो आप कह रहे, ओके, वो एक्ट क्या कर दिया, जो मॉडिफाई कर दिया था ओरिजिनल लैंड एक्विजिशन एक्ट, तो उस पे आप 4 गुना 5 गुना प्राइस ठोक दिया। रूरल एरियाज पे हम 5 गुना दे देंगे। ओके, तो उस पे एक्ट पे क्या बताया कि हम दे सकते हैं, दे देंगे ऐसे कमिटमेंट नहीं है। तो अभी देगा या नहीं देगा वो पॉलिटिकल प्रेशर पे होता है। हाँ, अगर आप प्रेशर नहीं डाले तो नहीं देगा, अगर प्रेशर डाले तो शायद दे सकता है। तो क्या हो रहा है, लोग सब जगह पे जहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आवाज उठा रहा है, हाँ, ये पैसे के लिए, और इससे डिले हो रहा है। अभी रोड प्रोजेक्ट्स में भी ये डिले आ रहा है। तो लेकिन अब तक तो हिट नहीं हुआ। रेलवेज तो क्वाइट एन इनकेपेबल ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोग को प्राइवेटाइज करना चाहिए या कमर्शलाइज करना चाहिए, पीपीपी मॉडल लेके आना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है उधर। ओके, अभी आप स्टील पे देख लीजिए, स्टील पे भी प्रॉब्लम्स आ रहा है, लार्जली बिकॉज ऑफ लैंड एक्विजिशन बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन फेलियर। वो इधर से कोल मांग रहा है, उधर से रेलवे वैगन्स मांग रहा है, वो मांग रहा है, सब कुछ एक तरफ से आ रहा है। ओके, तो ऐसे पड़ा है बहुत सारे सेक्टर्स, ओनली रोड इज द सेविंग ग्रेस। तो ये अभी ये दिस इज नॉट एन इंडिक्टमेंट ऑफ द मोदी गवर्नमेंट अलोन, it's an indictment of government and it's an indictment of Modi government because of centralization से क्या हो गया, जो काम चल रहा था उसमें भी डर आ गया। वो आप इस गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन बाकी सब तो पीछे से आ रहा है, क्योंकि प्लानिंग कमीशन ने सिर्फ रोड्स के प्रोजेक्ट्स अच्छी तरह से किया, रोड्स, और कोई ऐसा भी किया था पहले, ओके, जैसे पोर्ट्स का, हाँ, विजिंगम पोर्ट अच्छी तरह से उसका पीपीपी अरेंजमेंट किया था, लेकिन उसका मेमोरी भी नहीं है गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट इज ए मेमोरीलेस ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने ही जो पहले किया था अच्छी तरफ से, वो अभी उनको याद नहीं है, क्योंकि जैसे सेक्रेटरी गया सब कुछ गया। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द ओनली गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड विच इज ए नॉन लर्निंग नॉन मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। तो आप ये सोचने की बात है, इसलिए इतना बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत बड़ी बात बोली आप बैकलॉग की भी आपने बात की, और दूसरी बात ये कि मेमोरी में कुछ नहीं अच्छी चीजें हुई है तो वो भी कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये बात रुकती है अश्वनी जी कि अगर कॉस्ट बढ़ गया, जो आंकड़े हमने देखे, चर्चा कर रहे, सेबेस्टियन सर ने काफी सब सेक्टर्स की बात की, जो समस्या उसके मूल की बात की, व्यास सर ने भी कहा कि ये चिंताजनक स्थिति है। लेकिन अगर यही हाल रहे, अगर 4.65 लाख करोड़ का अंदाज से ज्यादा खर्च हो गया, तो क्या आप मानते हैं कि 2025 तक जो हमारा इन्वेस्टमेंट है या फिर हमारा जो गोल है, उसको, जो प्रोजेक्ट को पूरा करने का, ये हो सकता है इन सभी आंकड़ों के बीच और जो स्थिति की बात की व्यास सर और सेबेस्टियन सर ने? नमस्कार। प्रोफेसर सेबेस्टियन एंड व्यास सर ने जो इंसाइटफुल एक प्रेजेंट किया है सिनारियो एंड द हिस्ट्री, दैट इज वेरी ट्रूथफुल इन अ सेंस। इसमें जो मेरा अपना एक ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सेक्टर हम देखते हैं तो ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बन जाता है इन इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, द डिसीजन जब भी गवर्नमेंट लेती है, गवर्नमेंट एजेंसी और एनी ऑफ द पॉलिटिशियन टेक्स इट, उसके समक्ष में बहुत सारे
कॉम्प्लेक्स सिनारियो होते हैं अपार्ट फ्रॉम हिज ओन पॉलिटिकल इंटरेस्ट एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट. फॉर एग्जाम्पल लोकल वर्सेज द नेशनल इंटरेस्ट. सो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो नेशनल इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी तरह से इंप्लीमेंट हुए हैं, जैसे नेशनल क्वाड्रेंगल प्रोजेक्ट्स है एंड आल्सो द काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट्स व्हिच हैव हैपेंड लाइक एक्सप्रेसवे एक्सपेरिमेंट, बट उसका लोकल एंड देन इन टर्म्स ऑफ रेप्लिकेशन टू द वेरियस अदर प्लेसेस वो नहीं हो पाया. इसका रीजन जो सेबेस्टियन सर ने बताया क्लियरली इन टर्म्स ऑफ, एक तो उसकी मेमोरी नहीं है, सेकंड है उससे लर्निंग जो है हम ट्रांसलेट नहीं कर पाए. हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स की बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है एंड उनके बीच में जो विषमता है, उनके कुछ स्टेट बहुत डेवलप्ड हैं और कुछ स्टेट रिलेटिवली कम डेवलप्ड है, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग एंड कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक अ रेगुलेटरी approvals, arrange the resources and also especially the human resources. That is where सेबेस्टियन शॉप मॉरिस ने बोला कि जो लोगों की कैपेसिटी कम क्यों हो गई, बिकॉज उसमें जो ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वॉल्व है, जिनके पास मेमोरी है, जिनके पास अपना एक एक्सपीरियंस है, जो फॉर एग्जांपल इफ हम गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म देखें बिटवीन 2000 to 2010 most of the senior most government officers have almost retired. That's for the period जिनको 30 से 40 साल एक्सपीरियंस थे. इट मींस 1960s and 60s के मिड 60s में जो लोग सर्विसेज में आए थे वो सभी लोग बिटवीन 2 to 2010 रिटायर्ड हो गए और इस पीरियड में हमारे नए लोगों को रिक्रूट भी नहीं किया गया. 90s के बाद से बहुत कम रिक्रूटमेंट हुए हैं गवर्नमेंट में. तो गवर्नमेंट की जो इंटरनल कैपेसिटी है वो सीवियरली इफेक्ट हुई है, ऑल द गवर्नमेंट्स, नॉट ओनली द स्टेट और सेंटर. तो वो एक रीजन है कि जैसे कि उनकी कैपेसिटी ऑफ मेकिंग एक्सपेंडिचर, हैविंग द इनोवेशंस. अब बिटवीन 1990 टिल 2010 जो हमारा एक ग्लोबलाइजेशन का पीरियड था जिसमें हमने लर्निंग करी है, उसके बीच में बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल पोर्ट, एयरपोर्ट एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ द पावर प्लांट, ये 3-4 सेक्टर ऐसे थे जिसके अंदर हम बहुत सी टेक्नोलॉजीज हम बाकी कंट्रीज से सीख के लेके आए कंट्री में विद FDI एंड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसके रिजल्ट हम अभी भी देख रहे हैं पॉजिटिवली. बट यही लर्निंग हम बाकी सब सेक्टर में ट्रांसलेट नहीं कर पाए. रेलवे, जैसे सेबेस्टियन सर ने बोला कि रेलवे कुड नॉट चेंज मच बिकॉज उसको चेंज करना आसान भी नहीं था और बाहर की टेक्नोलॉजी हम लर्न भी नहीं कर पाए. यही टेक्नोलॉजी जो अभी हम MRTS या बुलेट ट्रेन में हम लगा रहे हैं, अगर यही टेक्नोलॉजी अगर हम 10, 15, 20 साल पहले इसको ला रहे होते तो आज हमारी सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती कंट्री की. तो हमारी लर्निंग प्रोसेस सही में बहुत स्लो रहा है. और सेकंड चीज जो बोली है वो हमारा चेंज ऑफ द सोसाइटी एंड द डिमांड ऑफ द सोसाइटी आल्सो हैज चेंज्ड ओवर द पीरियड. अब पिछले 20 साल में तो हमारी कंप्लीट चेंज इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन का डिमांड आ चुका है. द नेचर ऑफ द यंग जनरेशन इज डिमांडिंग इज वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटीज व्हाट द प्रीवियस जनरेशन वाज डिमांडिंग. सो इन अ वे हम प्रीवियस जो मॉडल्स थे हमारे सक्सेसफुल एंड फीजिबल प्रोजेक्ट्स के, वही मॉडल हम अडॉप्ट करते चले गए, जबकि हमारे आज के जमाने के हिसाब से IT, डिजिटल एज वेल एज आवर काइंड ऑफ entertainment and kind of infrastructure what is needed for the cities as well as for the village, वो completely different demand. While जो हमारा सिस्टम अडॉप्ट है वो हमें अभी भी पुराने सिस्टम्स के हिसाब से देने की कोशिश कर रहा है. तो ये एक बहुत बड़ा एक डिफरेंस व्हाट आई कैन सी. इसके बीच में जो मुझे एक चीज जो समझ में आती है, एक थोड़ा सा सिल्वर लाइनिंग बोले या उसमें अपॉर्चुनिटी समझ में आती है. प्रेजेंट सिचुएशन पिछले कुछ सालों से जो ग्लोबल लेवल पे जो रिसेशन चल रहा है, तो सर्टनली हम मेगा प्रोजेक्ट्स और मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में जो हमारा एक्सपेंडिचर है उसकी जगह पे हम थोड़ा सा फोकस जो हमारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमने अभी जस्ट बात बताई, में शहरों को इम्प्रूव करना, वाटर, सैनिटेशन. आप अगर स्लम्स में जाएं, किसी भी रेलवे स्टेशन के आसपास निकलें, तो जो आपका एक भारत दिखाई देता है वो बहुत ही डिफरेंट भारत होता है जो हम उसको टीवी या मीडिया के थ्रू दिखाते हैं. तो ये अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि जो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का मुझे जो लगता है 10% भी अगर हम डालेंगे इसमें, तो ये सिचुएशन हमारी बहुत ही फास्ट तरीके से इंप्रूव हो सकती है. और पब्लिक की विलिंगनेस यहाँ पे बहुत ज्यादा है टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी इन सिटीज एंड इवन विलेजेस. तो ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखती है प्रेजेंट सिचुएशन में, अपार्ट फ्रॉम बहुत सारे चैलेंजेस
इन फ्रंट ऑफ आवर गवर्नमेंट इज लाइंग कि अगर हम इम्प्रूव नहीं किया तो हो सकता है अगले कुछ सालों में हमारी सिचुएशन और खराब हो, डिलेज और भी बढ़ जाए प्रोजेक्ट्स के। बट ये एक चीज है कि जिसके थ्रू हम अर्बन इंडिया को हम इम्प्रूव करके वर्ल्ड को शोकेस कर सकते हैं कि इवन इन अ सिचुएशन ऑफ क्राइसिस, पोस्ट कोविड क्राइसिस व्हाट वी आर फेसिंग एज इकोनॉमी, वी कुड स्टिल फोकस ऑन समथिंग गुड। एंड हिस्टोरिकली भी अगर हम देखें तो ये स्ट्रेटजी हर एक गवर्नमेंट की, एडमिनिस्ट्रेटर की और राजाओं की रही है कि जब भी उनके पास क्राइसिस आई है तो उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बनाई है। फॉर एग्जांपल उन्होंने किले बनाए हैं जो आज के शहर की तरह हैं, या उन्होंने कुछ पानी के रिसोर्स डेवलप करे हैं, बड़े बड़े जो तालाब और बड़े बड़े जो लेक बने हैं वो सब ऐसे ही बने। तो मेरे ख्याल से पानी, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ बिजली, शहरों की सफाई और सीवेज एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड नेचर, अगर इन 4-5-6 चीजों पे हम थोड़ा सा फोकस कर सके तो हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। जो हमारे स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थोड़े से स्लो प्रोसेस में आएंगे एंड इसको सपोर्ट करके इंटीग्रेट हो जाएंगे। हो सकता है 2 साल में ना हो तो हो सकता है 8 साल में हो जाए, बट ये एक पॉसिबिलिटी है। बट जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी पाइपलाइन में आ चुका है उसके रिस्क फैक्टर जैसे सेबेस्टियन मॉरिस सर ने बताए वो काफी हैरान करने वाले हैं और काफी आई थिंक उस पर ध्यान देने की जरूरत है जो मुझे लग रहा है। सेकंड चीज जो मॉरिस सर ने अभी बोला अबाउट द पर्यावरण और डेवलपमेंट के बीच का एक बैलेंस और कैसे उसमें इशू हो रहा है। मैं खुद पार्ट ऑफ नेशनल कमेटी हूँ प्रोजेक्ट क्लियरेंस का, तो हम लोग का ये ऑब्जर्वेशन है कि कोई भी कमेटी एटलीस्ट मेरे अपने उसमें हमेशा इसलिए बैठी है कि भाई इस प्रोजेक्ट्स में क्या चीज लैकिंग है जिसको हम इंप्रूव करने का सजेशन कर सकते हैं। यही एक उसका पर्पस होता है। उसका पर्पस कभी ये नहीं रहता है कि प्रोजेक्ट को हमें रोकना है, लेकिन जब इन फ्रंट ऑफ अस और एज अ कमेटी जब प्रोजेक्ट आते हैं तो उसमें आपको प्लानिंग से लेकर के एक्सक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन जो मैकेनिज्म होनी चाहिए आपके एनवायरमेंट पॉल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए, सेल्फ गवर्निंग मैकेनिज्म जो हम पीपी प्रमोट कर रहे हैं, वो मैकेनिज्म पूरी तरह से समावेश नहीं हो पाती, जिसके कारण हमें क्वेश्चन करना पड़ता है, वो क्वेश्चन में वापस डिले हो जाती है। तो मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट प्लानिंग और प्रोजेक्ट रेगुलेशंस एंड अप्रूवल एंड उसके पोस्ट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन के जो रेगुलेशंस एंड मैकेनिज्म है सेल्फ गवर्निंग, अगर हम वहां पे ध्यान दें, जैसे एमसीए की बात हुई, नाउ वी रिक्वायर इन अ प्राइवेट domain or you can say private infrastructure development domain, we require a self governing mechanisms. So ये एक चीज है जिसको हमें लेके आना पड़ेगा हर एक सेक्टर में और सेक्टर एसोसिएशंस एज ऑन द गवर्नमेंट के साथ, बिकॉज गवर्नमेंट का पूरा ये रहा है मिनिमम रेगुलेशन मैक्सिमम एक्सक्यूशन। सो ये इनका एक रोल रहा है। तो अगर रेगुलेशंस को मिनिमाइज करना है, प्रोजेक्ट्स को फास्ट करना है और उनको गति देना है, जिसके लिए हमारा पूरा गति एज अ डोमेन भी काम कर रहा है, तो उसके लिए हमें जरूरी है कि एक सेल्फ गवर्निंग मैकेनिज्म विद अ मिनिमम काइंड ऑफ टाइम टेकन उसको हम इवॉल्व करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये मेरा एक तरह से एक सुझाव बोले या उसको सबमिशन बोले, यही है। धन्यवाद अश्विनीजी। आज थोड़ी समय की मर्यादा है, पण जे ત્રણેય પેનલિસ્ટે વાત કરી કે સમસ્યા છે આંકડા ચોંકાવનારા છે, પણ સામે આયોજન સાથે સાથે જે ખૂટી રહ્યું છે, લક્ષ્યાંક મૂક્યો છે તેમાં આયોજનમાં શું ખૂટી રહ્યું છે, અથવા તો જે આંકડો કોસ્ટનો વધી રહ્યો છે એ વધતા કોસ્ટના આંકડા સાથે અર્થતંત્ર પર કેવી અસર પડશે અને 2025માં લક્ષ્યાંક આપણે શું આ રીતે હાંસલ કરી શકીશું, જે લેકિંગ પોઈન્ટ છે તેના પર ચર્ચા કરી બંને ખાસ મહેમાનો અશ્વિનીજી અને પ્રોફેસર સેબેસ્ટિયન મોરિસ, અને સાથે એ પણ કહ્યું કે થોડો બેકલોગ પણ છે, એવું નથી કે અહીંયા 4-5 વર્ષથી જ ચાલી રહ્યું છે, બેકલોગ સાથે મેમરીની પણ વાત કરી, તો સારી મેમરીઝ હોય એને કેરી ફોરવર્ડ કરવી જોઈએ। ધન્યવાદ વ્યાસ સર, અશ્વિની સર અને પ્રોફેસર સેબેસ્ટિયન મોરિસ સર ચર્ચામાં જોડાયા। ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની વાત હતી અને સાથે સાથે તકલીફ સાથે શું કરી શકાય તેની પણ પેનલિસ્ટે વાત કરી। અપેક્ષા રાખીએ કે આ ગંભીર આ પ્રકારના મુદ્દાઓ આંકડા ચર્ચા થાય, ચિંતન થાય અને આવનાર સમયમાં તેમના માટે રિઝલ્ટ માટે આયોજન પણ થોડું વધારે બહેતર થાય। ધન્યવાદ સર।